Hi, my name is Pankaj Upadhyaya. I welcome you to yet another second episode of Roundtable with Crew. And this time around, we are going to be decoding Brahm Assignment, our latest mystery short film. I have with me Munish Arora, who reprised the role of Summer, and also Kamal Khajuria, who made the screen debut with his role of Vikrant Kapoor. Over to Munish and over to Kamal to introduce themselves. Munish. Hi guys. Yeah, again. Hi guys. मेरा नाम मुनीश है एंड मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एंड मैं बिलीव करता हूँ कि इंसान को एक ही चीज़ पर सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे अपने पोटेंशियल ढूंढने चाहिए. सो मेरा जो दूसरा पोटेंशियल है जो कि मैं एक्टिंग करता हूँ एंड ये जो मूवी हमने करी है आई लव डूइंग दैट बिकॉज मुझे अच्छा लगता है चीज़ें करना ऐसी अलग से. सो मैं फार्मिंग करता हूँ, एक्टिंग भी कर लेता हूँ और या आई गेस दैट्स मी. ठीक है, हमारा ये राउंड टेबल जो है हम इसको काफी इनफॉर्मल रखेंगे. सो लेट्स नॉट गेट ओवरवेल्म्ड विथ द प्रोसेस और द फैक्ट कि हम लोग कैमरा के सामने हैं और हम हमारे बारे में इंटरनल चीजें और प्राइवेट चीजें और पर्सनल चीजें भी डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. लेट्स गेट बैक इनटू दैट इनफॉर्मल मोड and talk freely about us, about our motivations, about our trivia, and also how we came together for this short film. Okay, मैं spotlight लेकर जाता हूँ कमल के पास. Kamal, would you like to please introduce yourself? Hey guys, my name is Kamal and I'm a wedding photographer. I run my own company called Eternal Diary. You can find on Facebook and Instagram. And okay, my motivation for my work, I think, is my creativity, which I love to explore with all the peoples like Pankaj, Munish, Tawfiq, and so many other friends who I want to do that work with them. And my son and my family also. Obviously, my son is a huge inspiration because the way he talk about his. He makes his own story. So the way, I want to, like, rather than I want him to be on my path, I want to be on his path in terms of creativity. And, like with Pankaj, we always discuss a lot about creative things, a lot about the processes. And it's good thing, like we always indulge in some kind of discussion over this. Yeah. Thanks, Kamal. Kamal, recently you did some project with your son. I think some audio book that you had released and also some videos you had done along with your son. Would you want to talk more about it? So my elder son Rian. So Rian is very infatuated with garbage trucks. Don't ask me why. He's just infatuated with garbage trucks from the age when he was year 2. And then he started to build up his own stories. Garbage truck will come and we'll do this, all kind of stories. And then I realized, it's a potential to make a superhero called Garbage Man. And he really loved that. And we made 3 comic books over that, which you will find on Google Books. Wow. And because it's lockdown, we can't go anywhere. And we decided to do a video and it's thanks because of you, Pankaj. Like now I'm going into that video mode. So, and thank you also for like I look decent in front of the camera. So so yeah, so we made a video where again it's a creative thing where we generally if we make a drawing by shapes or something like that. But he learned a drawing from writing a word called truck and converting that word truck into a real, like a drawing garbage truck. So we made a video of that. So it's about a father-son bonding, like how we encourage each other and how do we help each other. Yeah. Okay, that's nice to know. So that is something more detailed about Kamal, that he runs his own photography page, Eternal Diary Australia, and he's quite good at it, especially with the portraits. That's how Kamal and I connect.
doing portrait photography, and also if you follow his work on Instagram, you will see that he does a lot of church photos, these church related functions, the weddings, I think birthday parties as well. All conferences, Conferences, yeah. So check out his work on Instagram, guys. Eternal Diary Australia. Coming to मुनीश, हमने साथ में कितने सारे शॉर्ट फिल्म्स और एटलीस्ट एक म्यूजिक वीडियो और एक टीवी कमर्शियल कर, ओके, एंड रिसेंटली हरजोत की लोटस शॉप, जिसमें आपने वापस से एक केमियो किया है, उसको मल्टीपल अवार्ड्स भी मिले हैं. सो अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर कैसे क्रिएटिव फील्ड में आप आए हो, एंड व्हाट हैज बीन योर जर्नी? Like the journey was actually a little tricky for me क्योंकि मैं एक पंजाबी हूँ एंड पंजाब से मोस्टली लोग कहाँ कनाडा भागते हैं, है ना, बाहर भागते, बस इंजीनियरिंग कर लो और बाहर भाग जाओ. तो मुझे इतने प्रिविलेजेस नहीं थे मेरी लाइफ में, तो थोड़ी टफ रही जर्नी मेरी. बट आई फील कि वो अच्छा हुआ कि टफ रही जर्नी मेरी, ताकि मैं इतना कुछ सीख रहा हूँ और सीख पाया हूँ अपनी लाइफ में. और एक्टिंग का भूत मेरे को बचपन से था, बट कभी उसमें मैं अपना कदम नहीं रख पाया बेसिकली, क्योंकि अब जब घर पे आपने वो देखते हैं सिचुएशन के, अगर इस चीज की तरफ जाऊंगा इसमें पॉसिबिलिटी है कि फेल हो सकता हूँ, बट अगर इस तरफ जाऊंगा तो एटलीस्ट आई कैन डू समथिंग फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली. तो फिर मैंने IT का रास्ता चुना, चलो कंप्यूटर करते हैं. एंड बचपन से मूवी देखने का बहुत शौक था मुझे, एंड इनकी एक्टिंग करना, उसकी एक्टिंग करना, और ऐसे करना वैसे करना. तो वो सिर्फ सपनों में रहता था कि ऐसा करेंगे, कोई सपना ही देख सकते तो समय तो धीरे धीरे जैसे हम स्टडी की तरफ बढ़ता रहा और कंप्यूटर सीखा, और फिर आई वेंट टू पुणे फॉर माय मास्टर, और वहां से आई वेंट टू सिंगापुर एंड देन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया फाइनली. पंजाब में कहाँ से हैं आप मुनीश? मैं हूँ लुधियाना से. अच्छा, तो लुधियाना से आप पुणे गए. पुणे में आप कितने साल रहे? पुणे में मैं रहा हूँ अराउंड 7 years, 6 to 7 years. अच्छा, that's nice. और फिर वहाँ जब आप महाराष्ट्र में जाते हो एंड जब आपको आजू बाजू वो लोग दिखते हैं जिनको आप टीवी पे देखते हो, लाइक हीरोज लोग, ओ देख वो जा रहा है भाई, अरे वो जा रहा है, वो देख, अरे वो देख वो जा रहा है शाहरुख खान, अरे वो देख, अरे इसका घर देखेंगे, उसका बंगलो देखेंगे. तो नो ये फैंटेसीज लाइक गोइंग आउटसाइड दिस पीपल हाउसेस एंड क्लिक द फोटोज. तो आई रिमेम्बर लाइक 2008 दिसंबर में मैं मुंबई गया था, पहली बार गया था, और क्योंकि हमारे एग्जाम खत्म हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर के, एंड आई हैड टू टेक अ ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू अमृतसर बेसिकली. तो बीच में लुधियाना आता है. तो वहाँ जब हम गए तो जो शाहरुख खान जी का वो है घर, मन्नत नाम का, वो इतना सही है. लाइक मैंने देखा यार कि कितना पैसा लगा उसको बनाने में. तो फिर बहुत चलो फैंटेसीज थी, वहाँ रह देखना है, यहाँ पे वो बैंड्रा जाना है, वहाँ पे एक शॉपिंग जगह है जहाँ सामान सस्ता मिलता है. तो ये थोड़ा मुंबई में घूमा मैं, तो वहाँ पे देखा कि ऐसे ऐसे लोग रहते हैं. फिर उसके बाद जब पुणे में मेरा सफर खत्म हुआ तो मैं सिंगापुर गया उसके बाद, और वहाँ मेरे को काम मिल गया था करने का, IT का ही बेसिकली. फिर वहाँ से मैंने PR का अप्लाई करा और मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया. तो ऐसे ही जर्नी थोड़ी अप डाउन होते हुए कहीं ना कहीं तो पहुंच गया मैं. फिर यहाँ आगे देखा तो देन आई फाउंड अ पोस्ट ऑन द फेसबुक लाइक हरजोत सिंह, जो कि अपने KH ब्रदर इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं. तो उनसे मुलाकात हुई फेसबुक के ऊपर. आई गेस वहीं पे हम दोनों मिले हैं बेसिकली, आप और मैं, जब हम स्टूडेंट वीजा का मूवी का शूट करने का सोच रहे थे. और तब आपको मैं मिला वहाँ पे, और बेसिकली मेरे को आप मिले और तौफीक भाई भी वहाँ मिले. और वहां से हमारा थोड़ा ट्यून अप बैठना शुरू हो गया कि चलो अब कुछ काम मतलब कि इस तरफ भी करते हैं, क्योंकि मेरा मोटिव यही था उनसे मिलने का, कि मैंने उनको बोला था कि मैं आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर रोल्स फॉर सम कैरेक्टर, बिकॉज मैं एंथुसियास्ट हूँ, मुझे पता है मेरे पे पैशन है चीज़ को करने का. मैं कोई भी नई चीज़ लेता हूँ तो मुझे करनी होती है कोई भी. तो उनसे मिले वहाँ पे, देन हमने वो शूट किया वो वाला स्टूडेंट वीजा. उसके बाद हमारी जर्नी आपको पता है, हमने काफी फिल्में साथ में करी है. फिर वो एड शूट आपने जो करवाया मुझसे, एंड आई डिडंट बिलीव एट दैट टाइम कि आपने बोला चलो मुनीश यही शूट करना है हमको,
एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड, क्योंकि जो आप सपने देखते हो, बचपन से देख रहे हो पर वो पूरे नहीं कर पा रहे, एंड यहाँ पे आगे जब वो आपको मौका मिल रहा है करने का, एंड वो इनफैक्ट ऐसा लगे इजी था मेरे, मतलब कि मुझे पहले लगा बहुत टफ होगा चीज करे, कैसे करते होंगे लोग, है ना, कैमरा क्या कैसे फेस करते होंगे, क्योंकि कैमरा आपको लगता है कि इस इजी कि तुम कैमरा क्या करके जाओ, तुम करके आ जाओ, पर वो इजी रहता नहीं है। तो वो उनको फर्स्ट टाइम पे समझ गया था कि इतना इजी तो है नहीं है। फिर हमने हर चीज बिल्कुल बिल्कुल ठीक मुनीश, हर चीज दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। और हाँ, और मेरे ख्याल से हर काम में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, क्रिएटिव फील्ड हो, एकेडमिक्स हो, अगर इंटरेस्ट है सीख जाता है इंसान, सीख जाता है। ब्यूटीफुल। मैं आपको यहाँ पॉज करूंगा मुनीश, और मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं कमल के पास वापस जाता हूँ। कमल, आपकी फॉर्मेटिव इयर्स दिल्ली में है, थोड़ा दिल्ली, एंड यू स्वेयर बाय दिल्ली, ओके? आई नो, हम दिल्ली वाले, बम्बई वाले, मैं सूडो बम्बई वाला हूँ। मैंने अपने जिंदगी के 8 से 10 साल मुंबई में बिताए हैं, तो और कलकत्ता, और मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, बैंगलोर में भी रहा हूँ। मैं अपने आप को अच्छा खिचड़ी मानता हूँ हमारे देश का, होम कंट्री का। बट हाँ, you swear by Delhi, so you want to talk about your formative years? So I was born in Delhi. My education, my graduation, post-graduation, everything was in Delhi. My first job was in Delhi, and before coming to Australia, for 5 or 6 years, I was a banker. So I was not in the field of photography at all. Not any creative thing. I remember my first camera was Sony, way back, like in 2012, I guess. That's how I bought my first camera. But it was more of, like the point and shoot ones. Yeah. Then my wife got a transfer from Delhi to Australia. और उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया, then we decided, let's do something different. And then one of my wife's cousin, he runs all the conferences in Australia regarding the VR, AR. So he said, is it okay if you click my conference photos? Okay, yeah. Like, I don't have any experience, but let me try it, And then I started doing his conferences, ek kiya, do kiya, teen kiya. And then, you'll get that. So you get, as you say, once you enter into that, then you learn about it. Acha, what's the process? Ye photos aise खींच लिया, अब इसको edit कैसे करना है, and all those stuff. And that got me really going. So I don't have any formal degree in photography, but it's more of YouTube videos and a lot of other stuff, the books. That's how I learned. So my process for learning anything is to do practicals. So I don't. So if I do practical, probably I'll fail once, fail twice, thrice, but 4th or 5th time, I'll do that thing. So yeah, Delhi के अंदर मेरा कोई creative का कोई काम नहीं था. The only thing I have to do is meeting people, because I was a sales employee in my bank. So meeting people, get all the investments and all those stuff. So nothing at all for the creative. So sorry, which part of Delhi are we talking about? I'm from North Delhi. No. So my home used to be in Rani Bagh earlier when I was till young age. Now I'm not young. Okay, what do you miss most about Delhi? Now I'll go off track. What do you miss most about Delhi while living in Australia? So when you're in Australia, obviously you miss your family, like everyone is there, family, relatives, and as every Delhi wala will say, they'll miss the food. You can't get Delhi food here. Okay, that's nice to know. ठीक है, I'll come to Munish now. So Munish, हमने साथ में एक म्यूजिक वीडियो, एक टीवी क्लाइंट कमर्शियल, जिसके लिए हम लोगों ने शायद मिलकर 7 से 8 या मे भी 10 छोटे छोटे कमर्शियल्स बनाए। और हमने कितनी सारी फिल्मों में साथ में काम किया है, जिसमें मैं सिनेमाटोग्राफर रहा हूँ, जिसमें मुनीश एक्टर रहे हैं,
कर्मा, स्टूडेंट वीजा, कर्मा 2, आई थिंक कर्मा 3, फिर ब्लडी न्यू ईयर, हाय रब्बा, और हाल फिलहाल में हरजूत की लोटस शॉप। तो ये सारे जो प्रोडक्शंस हैं ये केएच ब्रदर्स फिल्म्स के हैं, हमारे वेरी डियर फ्रेंड एंड ब्रदर हरजोत सिंह जी। और रिसेंटली हरजोत की लोटस शॉप को काफ़ी सारे मल्टीपल अवार्ड्स मिले हैं, और ये सुरेश मक्कर प्रोडक्शंस के बैनर के साथ केएच ब्रदर्स ने बनाई है, और इसमें भी मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ। इसके अलावा मुनीश हमने काम किया है 2 एंटी डाउरी डोमेस्टिक वायलेंस अवेयरनेस भूल गया थोड़ा, सॉरी। जी हाँ, और वहाँ पे मैं को प्रोड्यूसर भी था, मैंने एक कहानी भी लिखी थी, और मैं डायरेक्टर फोटोग्राफी भी था, एडिटर भी था, और मुनीश उसमें एक शॉर्ट फिल्म में लीड एक्टर थे। मुनीश, आप क्रिएटिव फील्ड से नहीं थे, आपकी इंटरेस्ट थी क्रिएटिव फील्ड में, और आप टेक्निकल बंदे हो, इफ वी मे कॉल यू, बिकॉज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। सो आप ये बैलेंस कैसे फाइंड करते हो, और अपने प्रोसेस के बारे में बताओगे, हाउ डू यू गो अबाउट द एक्टिंग प्रोसेस? एंड आई आस्क यू दिस बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो कि या तो स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग लाइफ में भी हैं, और वो क्रिएटिव फील्ड में जुड़ना चाहते हैं या आना चाहते हैं। मुझे मेरे मैसेंजर्स पे मुझे हर दिन ऑलमोस्ट 3 मैसेज आता है, एटलीस्ट 3 से 4 मुझे मैसेजेस आते हैं जिनमें लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं इन क्रिएटिव कैपेसिटी। मैं सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ, जिनको मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ मैं उनको यही पूछता हूँ कि भाई आपकी इंटरेस्ट क्या है, और मैं उनसे ये नहीं पूछता आपकी स्किल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्योंकि मुझे पता है कि इंटरेस्ट है सब कुछ हो जाएगा। बट द हार्ड पार्ट इज आप बैलेंस कैसे करते हो इन दोनों चीजों को? ये बैलेंस करना तो थोड़ा अगेन इजी नहीं होता है, क्योंकि जैसे आपको पता है मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दिन के सिर्फ 4 या 5 घंटे काम करना, बिकॉज आपका काम उतना ही सीमित है। कभी कभी होता है आपको 12 घंटे भी काम करना पड़ता है। तो बेसिकली एक साल में ऐसा टाइम आता है कि जब व्हेन यू आर लाइक यू नीड टू वर्क अराउंड 10 to 15 आवर्स, क्योंकि जब हमारा प्रोडक्शन वगैरह होता है, तो मैं प्योर टेक्निकल साइड से हूँ कि जो हम सॉफ्टवेयर देखते हैं, ये जूम चल रहा है, जो कोई भी सॉफ्टवेयर देखते हैं तो उनको डेवलप करने वाले हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, तो पूरा कोडिंग का हमारा काम रहता है। तो उसको बैलेंस और कैसे करता हूँ मैं कि जो काम होता है लाइक मुझे पता है कि अगले वीक ये काम पढ़ने वाला है मुझे, तो आई ट्राई कि उसका हाफ ऑफ काम मैं अभी कर लूँ, एंड वीकेंड अपने को फ्री दे दूँ अपने आप को जितना टाइम मिलता है मुझे। और थोड़ा पुशअप करना पड़ता है कि जैसे मुझे पता है कि मुझे आज 10 से 11 घंटे काम पढ़ने वाला है, तो मैं उसमें से 1-2 घंटे निकालता हूँ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, या तो उसमें मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ, जैसे कुछ वीडियोस हो गए, या फिर स्क्रिप्ट पढ़ी होती है इंटरनेट पे, उसको रीड आउट करना, तो वो स्किल्स गेन करना। फिर अपनी थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह जो करनी होती है, उसके लिए मैं बाहर जाता हूँ सुबह मॉर्निंग में 6:37 अराउंड। तो जो टाइम हम सो के बिताते हैं मैं थोड़ा उधर स्पेंड करता हूँ चीज़ों में। इस तरह से मैं थोड़ा बैलेंस और कर पा रहा हूँ उन चीज़ों को, और इतना टफ नहीं होता है करना इसको, अगर आपका माइंडसेट हो ऐसा। तो अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग रहता है तो आप वो चीज़ें कर लेते हो जो आपको करनी है। वेल सेड। मैं वापस आऊंगा मनीष आपके पास। कमल, आपके पास जाता हूँ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मेकिंग ऑफ भ्रम असाइनमेंट। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस, हमारी फिल्म को लिफ्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क्स में ऑफिशियल सिलेक्शन मिली है, और उसे पाइनवुड्स स्टूडियो यूनाइटेड किंगडम में स्क्रीन करेंगे, और बिटवीन आई थिंक August 16 to August 30 वीमियो पे वो दिखाया जाएगा लिफ्ट ऑफ के सारे मेंबर्स को, जो कि रिस्पेक्टेड और रेप्यूटेड फिल्म मेकर्स हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर आवर वर्क। हमें पता है हमारे वर्क में 100% वर्क हमारा नहीं है अभी, बिकॉज वी ऑल लर्निंग टुगेदर, बट इस तरह की अप्रिसिएशन सबको अच्छी लगती है। या कमल, आप नॉन एक्टर हो, ओके, और आप कैमरा के पीछे भी रहते हो, हम एक दूसरे को जानते हैं 2-2.5 सालों से। मैं भी टेक्निकल हूँ, आप भी टेक्निकल बनते हो। फिर इस तरह का चैलेंज पहले तो जो झक्की आदमी आपके पास लेकर आया कि कम एंड डू दिस वर्क, एक्टिंग करो, ये कैसे हुआ? सो लेट्स टॉक अबाउट मेकिंग ऑफ द फिल्म
not from my perspective that I approached you for this opportunity, but what was your overall stance on the making process, how the shooting went, how the post production went? You want to talk more about it? So first of all, I want to tell everyone, like, I am a complete movie buff. So बॉलीवुड की कोई ऐसी मूवी नहीं होगी जो मैंने देखी ना हो. there are people, everyone used to say हर फ्राइडे जब मूवी आती थी कि what's the review, कैसा है, and people used to read the reviews in the newspaper or in the YouTube and say अरे इसका अच्छा review नहीं है, we don't want to see that. So I am not that kind of person. So for me, like every movie, like I have to see it. Whether I like it, then it's my personal choice. Like everyone, there's so many movies which are completely written off by all the reviewers, but I love them. So that's my personal choice. And so when you come with this idea of putting me in front of the camera, it's like, initially I thought no, like I don't want to do it, but then obviously being Pankaj Upadhyay, you just pushed me into that. And it was good. The story, when I read the story, it was absolutely, it was great. And I don't the good things, let me talk about the good things. The good thing was, like, we are in challenging time, and the good thing is it was a non-stop shooting, like start from 6 to 10 I think 10 a.m. like in 4 hours, I guess. Yeah, so this movie was, we were not shooting for multiple days and all those stuff. So it was just 6 to 10, just 4 hours movie shooting. And I honestly, I didn't know that we can shoot in that particular hours. We all are, we all have other stuff to do, and giving that particular time to that particular movie. I think hats off to you, like how you shoot that. I think you were very clear in your mind what exactly you want, what kind of shoot, where do you want to put the camera, and it was good. And when we met on the day of the shoot, you said, I don't want you to rehearse. Obviously, I'm not an actor, and whatever, I was just following your thing, your ideology, like what you want me to do. So it was amazing. I really liked that 4 hours. It was like, it completely took me away from I used to work, or like I was not thinking about anything. Those 4 hours, I was just thinking about what you are telling me to do. So it was an awesome thing to do. Yeah. That's nice. Thanks, Kamal. Munish, how did you go about the making process? Like, मैं बोल सकता हूँ कि जो भी इन्होंने बोला वही मेरे को भी बोलना है, but I won't do that. Yeah. Munish, you are an actor. You have other processes. नहीं, actually हमने जो भी शूट करा है आज तक, whatever shoot we have done till date, वो हमने 4 घंटे में नहीं करे हैं. Like हमने जितने भी काम साथ में किया, या हमने डिफरेंट काम किया डिफरेंट टीम के साथ, तो it was itself is a proud thing कि हमने 4 घंटे में पूरा निपटा के, एंड हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाया है. और जब आज हमने ये मूवी पब्लिश करी है, पीपल अप्रिशिएटेड, एंड वी स्पेंड शूट पे तो हमने तो 4 घंटे दिए हैं, बाकी एडिटिंग का काम जो भी है वो पंकज भाई ने खुद ही करा है. सो हेड्स ऑफ, लाइक जो भी एनिमेशन डाले हैं, जो आपने जितने भी वीक्स लिए हैं उन चीजों को करने के लिए, एंड लाइक वो जो काम दिख के आता है ना कि हाँ यार कुछ तो किया लोगों ने. इट्स नॉट लाइक ओके डाल दिया है, देख ले लोगों ने, इट्स फाइन, बट वो जो एडिटिंग करा है, उस पर जो पूरा काम किया गया है, दैट्स डिफरेंट. तो वो तो इनके में जितना, मैं क्या बोलते हैं यार, हिंदी के ज्यादा वर्ड्स मुझको आते भी नहीं है. तो आप समझ रहे हो बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा. Thanks, guys. Okay, मेरे ख्याल में I want to talk about this special effect part. Like when we were shooting that special effects, like I was really not aware. Like I know that you wanted to do that, put that special effect in that part, but I was really not sure how will you do that. And Yeah. It was amazing. Like it's so good to for you. Like you learned those things and then you put in that movie, and it comes so nice. Like it's not an amateur job. It was so like a professional job. You did it. Yeah. And that's one of the fine part that I found. Like
जो स्टोरी जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को I haven't seen any special effect in any of your movies earlier, right? That's correct. Thank you. हाँ यार जैसा I won't say मैंने किससे बात करी है, मैंने किसी से बात करी है, मैं ये जो इफेक्ट डाला है ना, will use that effect in the next one. Thank you boys. पकड़ना पड़ेगा इनको, भाई बताओ ये कैसे किया है ये आपका टाइम जाने वाला है उसमें. I think the good part is जैसा कि you know किसी भी फील्ड में होता है और क्रिएटिव फील्ड में भी होता है, the more you do the better you get at. तो बिकॉज मैंने लास्ट 2 सालों में नॉन स्टॉप प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, चाहे वो म्यूजिक वीडियोस हों, शॉर्ट फिल्में हों, पोएट्री वीडियोस हों, तो एडिटिंग में काफ़ी मैं सीमलेस हो गया हूँ. और ऑल्सो मैंने काफ़ी स्पेंड किया है टाइम एज अ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ऑन डिफरेंट सेट्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शंस, KH ब्रदर फिल्म्स, क्रिसेंडो, रेडियो कहते सुनते, नौटंकी थिएटर, मानसी के प्रोडक्शंस का नाम क्या है, नॉकआउट प्रोडक्शंस, न्यू साउथ वेल्स पुलिस. तो ऑन द सेट पे मैं बहुत रहा हूँ. मैंने फोटोग्राफी तो नहीं, मैंने वीडियोग्राफी असाइनमेंट्स किए हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स अटेंड किए. तो मुझे बात समझ में आ गई है कि बहुत सारी चीज़ों को, और मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को 2 बातें सिखाई जाती हैं. या तो क्रैश करो, क्रैश, ओके, ठीक है, या तो आप क्रैश करो या फास्ट ट्रैक करो. नाउ क्रैशिंग इज जो प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन होता है ना, उसमें अपने सारे रिसोर्सेज को एक साथ झोंक दिया, तो ये जो आपकी टाइमलाइन है वो मीट हो गई या छोटी हो गई. और फास्ट ट्रैक है कि आपने उनमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके वो टाइमलाइंस को अचीव कर लिया. तो मैं यही मेथोडोलॉजी अपने क्रिएटिव प्रोसेस में अब लगाता हूँ, प्योरली बिकॉज़. Let me ask a question to you, which you asked to Manish earlier. Like, you're working, you're a project manager, yes, and in the last 2 years, you have made so many movies. How? Like, how do you manage them? Good question. Like, and you are learning also. Like, you're learning. Like in this movie, you learned that how to put that special effect in that. Correct. So that means, you don't know. You're learning everything. Correct. And you're reading all those stuff. How did you do that? How do you manage? So and you have mind you Pankaj have 2 kids. Yeah, girls, huh? By the way, खैर girls या boys फर्क नहीं पड़ता, abundance of energy होती है बच्चों में, and they take your time out. मेरे ख्याल से मेरा advantages है, एक तो मेरी जो ट्रेनिंग है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, मीनिंग मैं ट्रेनिंग से भी ज्यादा मेरी इंटरेस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में. और मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पिछले 10 सालों से हूँ. BPOs में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्टार्ट किया था, फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशंस करता था मैं, शेयर्ड सर्विसेज का, बहुत सारे ज्योग्राफीज में भी रहा हूँ. नेचुरली मैं थिंक करता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ, और मुझे पता रहता है कि मुझे अगर मेरा जो बेसलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट है बेसलाइन का, कि आपकी बेसलाइन एस्टैब्लिश हो गई है कि आपको ये चीज रेप्लिकेट करना है या लिफ्ट एंड शिफ्ट करना है या इनहांस एंड शिफ्ट करना है, तो मेरे वो दिमाग में एज अ मैप बन जाता है. और बिकॉज मैं बचपन से इंटरेस्टेड था फिल्मों में, रनिंग आउट ऑफ टाइम 10 मिनट्स, एनीवे, मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था, तो मैंने उन्हीं मेथोडोलॉजीज को मैरी किया है, इनकॉर्पोरेट किया है मेरे हॉबी लाइन में भी, मेरे पैशन लाइन में फिल्मों के. तो दैट्स इट, नथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल. मैं एक टाइम बनाता हूँ, उस टाइम में मैं जल्दी उठ जाता हूँ, और जब सारे सो रहे होते तो शायद मैं उठ के ट्यूटोरियल्स देख रहा होता हूँ, और मैं रात को सारे अपने काम करने के बाद मैं 10 बजे अपने एडिटिंग स्वीट पे बैठता हूँ, और रात के 1 बजे तक मैं हर दिन बैठता हूँ. तो 10 से 1 बैठ के मैं चीजें सीख रहा होता हूँ या कर रहा होता हूँ. तो यही मेरा अपना विंडो है जिसकी वजह से मैंने पिछले 2 सालों में न जाने कितने प्रोजेक्ट्स निकाले. दैट इज द ओनली सीक्रेट. या तो जल्दी उठ जाओ या देर तक जागो. अच्छा, ये टाइम खत्म होने वाला है, सो आई जस्ट अब क्विकली अपग्रेड. ओके, एक क्वेश्चन मुझे बताओ जरा, नेक्स्ट मूवी कब निकालने वाले हो? हाँ, तो अभी लॉकडाउन हो गई है, लेकिन मैंने इस लॉकडाउन में भी एक शॉर्ट फिल्म, एक म्यूजिक वीडियो शूट की है पर्सनल. ओके. और इसके अलावा मैं एक और शॉर्ट फिल्म के कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू कर दिया है. एक और है जो मुनीश के साथ मैं करूंगा आफ्टर लॉकडाउन.
राइट गाइस, जस्ट तो कमल का सवाल था कि मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स कैसे किए हैं लास्ट 2 सालों में, तो उसका जवाब यही है कि मैं जल्दी उठता हूँ और मैं So I contradict with your answer. So when you say making film is your hobby, I don't think so. It's your hobby. It's your I work, huh? think it's your main work. Like that's what you want to do. And right now the other work which you're doing is probably is your like It's for the money. वेरी वेल सेड. Yeah. यप. यार एक कहो ना प्यारे में एक डायलॉग था जो डू यू रिमेम्बर दैट फिल्म yeah, Hrithik Roshan. ऋतिक रोशन की? उसमें सतीश शाह और फरीदा जलाल जी थी, एक अंकल आंटी बने थे वो लोग, और उसमें करने के लिए उसमें फरीदा जलाल का डायलॉग था कि ये ऋतिक रोशन स्पेयर टाइम में हमेशा गिटार बजाता रहता है, म्यूजिक बनाता रहता है. तो उसमें सतीश शाह का जो कैरेक्टर था, बड़ा क्यूट अंकल का था, वो कहते हैं कि वो जो सवेरे पूरा दिन करता है वो उसका काम है, वो पेट भरने के लिए करता है, मगर ये जो काम वो अभी कर रहा है ना, वो अपना दिल भरने के लिए करता है. दिल भरने के लिए. उसको करने दो. वाह. तो So don't say it's your hobby. I'm sorry. Thanks, Vai, for correcting that. It's truly what I enjoy doing most and truly what I love to do most. बाकी चीजें शायद मेरी हॉबी है. As Kamal rightly said. So thank you guys. हाँ जी. Just showing you that ठीक है, video. जल्दी उठ जाओ और देर तक जागो, तो आप लोग भी बना सकते हो. इसका मैं देखो ना ढंग से, in case if you figure it out. इस चेयर में से धुआं निकल रहा दिखा. ब्यूटीफुल. प्रैक्टिस कर रहे हो क्या आजकल SFX? हाँ, नहीं ये एक्चुअल में निकल रहा है धुआं वहां से. मैं सुबह गया था आज. And if you see that, I thought it's like a ghost rider thing. My God, wow, amazing. Manish, you have to tell Pankaj to make a love story with you, please. He is making some. यार चलो, I promise ये able to find a girl for me. I promise मुनीश, ये विजुअल ये कहाँ का है? ये क्विकर्स हिल का है ये बेंच? ये क्वेकर्स हिल का है. ओके गाइस, ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, इस बेंच को अगर आपने देखा है तो प्लीज देख ले. मैं इसी बेंच पे मुनीश के साथ एक लव स्टोरी बनाऊंगा. ओहो. I promise you मुनीश. Post love story. लॉक करो. Let's look out for the heroine now. Oh yeah. इसी बेंच पे एक हम क्यूट सी स्वीट सी लव स्टोरी बनाएंगे. मेरे कई जो फ्रेंड्स हैं और यूफनी फिल्म्स के भी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने रिपीटेड कंप्लेंट्स डालना शुरू कर दिया कि मैं खाली मिस्ट्री बना रहा हूँ, हॉरर बना रहा हूँ. I think time है मैं You know what good thing about that mystery, like I can only talk about the right now the Brahm assignment, and I've talked about my things. Like a lot of friends of mine, they ask me a lot of question about it. Like that's what good thing about the mystery thing is. You know, when your friends or when people who are watching that, if they ask question, that means yeah, you are on a right track. And they honestly they wanted to know more about me. They wanted to know more about Manish. Why he's been killed, and why have I killed him? मुझे कॉप ने पूछा So, कि I think- सब तो ठीक है, पर कमल के कैरेक्टर ने मुनीश को मारा क्यों? What is his So backstory? yeah, so that's what I'm asking. So it's a short movie, and people are talking about it, which is good. They want to see more of that thing. So hats off to you again. Thank you boys. I think it's collective energy, and the reason I could finish the story, finish the filming process in 4 hours straight is purely because of the commitment of my friends Kamal and Munish. रात के 10 बजे हमने शायद लॉक किया नेक्स्ट डे का फिल्मिंग स्केड्यूल. हम लोग काफी डेलिब्रेट कर रहे थे कब इसको फिल्म करेंगे. 11:30 का था. sorry to correct you, but 11:30 मुझे आपका मैसेज आया था कि हाँ कंफर्म है ना. मैं कि हाँ जी कंफर्म है. 11:30. इमेजिन ये बंदे जाग रहे थे ऑन अ फ्राइडे नाइट. आई थिंक सैटरडे मॉर्निंग हमने शूट किया. संडे हमने क्या सैटरडे Saturday. मॉर्निंग. वो फ्राइडे मेरा एक और शूट था, मैं वहां से आ रहा था बेसिकली. ब्यूटीफुल. आपने बोला. सो इमेजिन गाइस, अगर आप लोगों को लगता है हम लोग जो भी करते हैं वो आसान है, तो ठीक है, वो आसान होगा. कमिटमेंट इस लेवल की चाहिए तो वो आसान होगा, नहीं तो नहीं होगा. बट थैंक यू बॉयज, एंड स्पेशली मैंने रिहर्सल भी नहीं कराया. आई रिमेम्बर आप लोग मुझसे लाइंस मांग रहे थे, स्टोरीज मांग रहे थे, पर मैं नहीं चाह रहा था कि आप लोग रिहर्सल करो, बिकॉज मैं वो रॉ इमोशंस निकालना चाहता था. एंड नाउ ऑल हैट्स ऑफ टू यू, kudos टू यू. बट बिकॉज हम लोग अनरिहर्स्ड थे, आप लोग देखो स्क्रीन पे कितना नेचुरल निकल कर आ रहा है सब कुछ. बट अग्रीड, पॉइंट टेकन. हम डायलॉग्स पे एक प्री रीड दोबारा करेंगे. सो
गाइस मैंने रिहर्सल नहीं करने दिया था मेरे एक्टर्स को, पर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग रिहर्सल कर आएंगे डायलॉग्स का एटलीस्ट. बट हाँ, कुछ कैरेक्टर्स को मैं फिर भी बांध के रखूंगा. आई डोंट वांट माय एक्टर्स टू रिहर्स प्योरली बिकॉज मुझे लगता है जब आप रिहर्स करते हो तो आप एक्ट करते हो. मैं नहीं चाहता कि वो एक्ट करे, मैं चाहता हूँ वो नेचुरल रहे. वो एक्टिंग ही होती है लेकिन स्टिल थोड़ा नेचुरल रहते. ओके नाउ गाइस, आई विल क्विकली फायर सम क्वेश्चंस सो दैट ये वीडियो जो भी देख रहा है वो थोड़ा सा और okay, so the first question to Kamal. Yeah. Okay. Okay. Now that you are an actor with your debut film, and the debut film is also an award-winning film, okay, critically recognized. In which area would you like to improve as an actor? And now that you've spoken about romantic films a couple of times, Kamal, okay, so which area would you like to improve as an actor, and would you like to do a romantic film? Let me do all the genre first. Let me do all the genre, and then I'll see, okay, whether I'm good in horror, mystery, love, comedy, or first you have to make all the genre with me. Wow. ठीक है, noted. Munish, question to you. What sort of acting roles will you be seeking in the future? Romantic. My God, romantic. मुझे पता लगता है कि I can do that thing much better than the other roles. क्योंकि जब मैं कोई मूवी देखता हूँ ना, मुझे वो जो रोमांटिक सीन आते हैं, and I try to replicate that thing, and I feel okay, यार it's good, like सूट करेगा मेरे को. But जब विलन का आता है तो I feel okay, villain is also good, ठीक है, विलन भी चलेगा. Okay, Kamal, who is your favorite actor and why? Who is my favorite actor? I love everyone. So even from Ranbir Kapoor to Nawazuddin Siddiqui to Satish Shah, everyone, like I love everyone. That's and honestly, because of this lockdown and thanks to Netflix and Amazon, I now watching the different kind of the Malayalam, Tamil movies also. So if I'll go on that side also, the South Indian movies, they are just amazing. Just wow. I think Bollywood has to step up in terms of 100%. their quality and production value to match up those South Indian movies. Like yesterday, I started watching this new season series which has come on Netflix, Navrasa. Yeah. So I've just started. So yeah, for me, like it's everyone. 100%. Okay, Munish. If you just talk about the music director, my only is A.R. Rahman. I just any song, like so with me, A.R. Rahman is just his creative. When I see his interviews, that's how I learned myself also. Like I also work in night, not because of him, but when he says in the night it's silence, and when it's silence, your mind is just working towards your project, whatever you want to do. In the day you can't do that, and that's so true. So and his music is like it grows on you and even now my kids are also a fan of A.R. Rahman somehow. Agree, 100% agree, 100%. So that process is called a Sufi process. It's internal process और quiet process. Quiet time होती है, me time होती है और आप concentrate कर पाते हो. Question to Munish. Do you have any special skills that you will like to demonstrate in any of your upcoming films? Special skills. Maybe a little martial arts. That I used to learn it. Like I didn't do it for like I didn't do it much, but I know I can do that well. So मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी चीज दोगे ना, I can perform better. So I don't know how true that is. Like वो करा तो है नहीं. And second thing, I feel like मैं expression जो अपने में डाल सकता हूँ चीजों में, वो मेरे को वो वाला रोल नहीं मिल रहा जहाँ पे मैं वो expression जो डाल सकता हूँ जो actually मेरे खुद के हैं. And that's again gonna be romantic. Sorry. Okay. ठीक है, noted. Thank you. Kamal, any message for people who are watching this video, to your family, to your friends, to your fans now? So yeah. So message. I just want to say that this little community in Sydney, in Australia, we are working hard and we try to make
good movies for you. So please watch them on YouTube, and subscribe to our channel, because we try to come up with different projects. So watch them, encourage us also. If you don't like anything, just message, just tell us, like, you don't like this kind of thing. Because if we don't know what you guys are liking or you guys are not liking, if you don't tell them, then we can't improve on those perspectives. Like, if I don't do anything, probably Pankaj will tell me, or probably Munish will tell me, but they are not the audience. You guys are the audience. So if you tell us, like, just this is right, this is wrong, just be black and white and just tell us, let us improve. Yeah. Okay, Munish, message for your fans, family, friends. Yes, I actually agree with Kamalji, because it's always good to have a bad feedback than to have no feedback. So हम वो improve कर सकते हैं अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही. And again, we have come up with a lot of projects like Dowry One, which was actually based on domestic violence, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट को नहीं पता है कि वो होता क्या है. So there are various forms of that. So हम वो ट्राई कर रहे हैं कि वो हर चीज़ जो कि अब है हम उसे थोड़ा दर्शा सकें ऑडियंस के आगे. और एंड ऑडियंस के लिए बस यही एक वो है विश कि वो देखें और अपने व्यूज दें कि उनको कैसा लग रहा है, ताकि हम भी थोड़ा इम्प्रूव कर सके अपनी तरफ से. Like, there's so many times, Pankaj, like when we discuss about the movies which you shoot or about the photos which I take, like so many times, we are very black and white towards each other. Like, ye acha hai, ye nahi acha hai. So that's how we are improving. But it's just 2 or 3 of us. So we want like 100 of people, 1,000 of people to watch this movie and give us the feedback. Thank you, boys. Any other last message? Or no, it's a question for you. Like, it's a question for you now. Last message मेरी तरफ से यही है कि जितना हमने कंट्रोल किया है कोविड यहाँ सिडनी में, वो भी थोड़ा टफ हो गया लोगों के लिए कंट्रोल करना, क्योंकि हमको लग रहा है कि सब खत्म, मतलब कि सब कोविड खत्म हो चुका है, हम बाहर घूम रहे हैं, बस मस्ती कर रहे हैं. तो प्लीज उसको थोड़ा रोकिए, ताकि जो कंट्रोल हमने पहले कर लिया था कोविड के ऊपर वो दोबारा कर सके ढंग से. और जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी लोग अपने काम पे निकल सकेंगे और बाहर घूम सकेंगे. और क्योंकि घर पे रहना, आई नो हाउ टफ इट इज, बिकॉज मैं खुद घर पे रह के ही कुछ सारे काम कर रहा हूँ, एंड आई एम हैविंग सो मेनी पेन्स इन माय डिफरेंट पार्ट ऑफ माय बॉडी, सो लाइक बैक पेन एंड अदर स्टफ. सो ये आप लोगों पे ही, अगर आप कंट्रोल करेंगे तो काफी लोग बच सकते हैं इन चीजों से. तो प्लीज घर पे रहिए और सेफ रहिए बस. Adding on to Manish, just get your vaccination, guys. It's safe. I've already got my first, and on Monday it's my second. So just get it done. So quickly, question for you, Pankaj, when's the next? What are you working on? Like, thank you. So I'll also summarize it with let me add another thing. So who's your inspiration? Like, I know you are also you are also a movie buff. So who is your inspiration, and any process you want to like add to your particular personality, you want to add on to that? Okay. So thank you, Kamal. Thank you, Munish. And with this also, I will conclude the video. Okay. My inspiration is truly, if I follow a lot of storytellers, filmmakers, and other genre of artists, their work that I have seen and has grown on me during my formative years and even now. I think अगर मैं एक ही बंदे को single out करूं, तो that has to be Shankar Nag, the director of Malgudi Days. Okay. He was a Karnataka. He was a Kannada actor and Kannada film director. And by the way, if you people did not know this, Shankar Nag was the younger brother of actor Anant Nag. कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से थे ये लोग, और महाराष्ट्र में भी इन्होंने थिएटर में ट्रेनिंग ली थी. एंड शंकर नाग वाज एन एक्टर, कमल, इन केस यू डिडंट नो. बट उनको एक्टिंग में भी नेशनल अवार्ड्स मिले थे और मिले ही थे. और उसके बाद उन्होंने फिल्म में डायरेक्शन स्टार्ट की एंड इवेंचुअली वो सबसे ज्यादा पॉपुलर और फेमस हुए मालगुडी डेज के लिए. एंड अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट शंकर नाग एट अ वेरी टेंडर एज ऑफ 35. डिड यू नो दिस?
So he died. मालगुडी डेज उन्होंने 86 में बनाई, 1986 में, but he died in 1990 in a car crash. किसी फिल्म शूट के स्केड्यूल के दौरान, आई थिंक 35 की एज में. बट उनका जो ये बॉडी ऑफ वर्क था मालगुडी डेज, दैट हैज रिमेन्ड विद मी क्लोजेस्ट. और मालगुडी डेज वाज आल्सो एक्चुअली द इंस्पिरेशन बिहाइंड माय फर्स्ट शॉर्ट फिल्म स्माइल, क्योंकि मुझे उनकी स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है. वो बिल्कुल सटल, बिल्कुल इमोशनल और बिल्कुल ट्रू. आर.के. लक्ष्मण ने जैसे शायद कहानियां लिखी थी, उन्होंने उससे भी खूबसूरत तरीके से उन कहानियों को पर्दे पे दिखाया. एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डू इवेंचुअली. मैं सीख रहा हूँ, आप लोगों की तरह ही मैं भी सीख रहा हूँ, और मैं इवेंचुअली चाहता हूँ कि जब मुझे लोग याद करें तो इस तरह के बॉडी ऑफ वर्क के लिए याद करें. सो मैं हर तरह के जॉनर में कर रहा हूँ. मैंने मिस्ट्री भी स्टार्ट की है फिलहाल करना, क्योंकि मुझे मिस्ट्री सस्पेंस कहानियां पसंद है. पर मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे करके मैं अपने आप को इतना सॉलिड अपने क्राफ्ट में बना लूं कि मैं लोगों के दिलों तक पहुंचना शुरू कर दूं. सो दैट इज द इंस्पिरेशन एंड मैसेज यही है मेरा लोगों के लिए कि जैसे कि कमल ने कहा, मुनीश ने कहा, अपना ख्याल रखें, वैक्सीनेशन लें और सेफ्टी का भी ख्याल रखें. निराश ना हो, मन को निराश ना करें. लॉकडाउन है, आई नो प्रेशर कुकर बन रहा होगा दिमाग में, प्लीज उसे ना बनने दें. एंड लुक एट द ब्राइटर साइड. हम जितनी जल्दी इन चीजों को ठीक से फॉलो करेंगे, हम उतनी जल्दी इस लॉकडाउन से निकलेंगे. या एंड एनीथिंग एल्स बॉयज? Watch our movie again, guys. No, just subscribe to Euphony Film, and you will see a lot of other movies and other stuff also. Watch it and thank you. A lot of videos like the Pankaj ki, he has done a lot of creative works. It's there on Euphony Films, and subscribe it, and you'll watch everything at one place. So yeah. थैंक यू. एंड ऑल्सो व्यूअर्स को मैं याद दिलाऊं कि सिडनी में भरपूर है एटलीस्ट देसी कम्युनिटी में टैलेंट. वी आर नॉट सेग्रीगेटिंग और सेपरेटिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द अदर ऑस्ट्रेलियन एथनिसिटीज और कल्चर्स, बट हम इंडियन ऑस्ट्रेलियंस या देसी ऑस्ट्रेलियंस एज वी कॉल आवरसेल्व्स हम हैं. प्लीज हमें सपोर्ट करें. और नॉट जस्ट अस, नॉट जस्ट यूफनी फिल्म्स, केएस ब्रदर फिल्म्स है, क्रिजेंडो है, नटराज एकेडमी है, जॉयस जैम रूम है, नॉकआउट प्रोडक्शंस हैं, बहुत सारे प्रोडक्शंस हैं. और हम सारे लाइक माइंडेड लोग हैं, हम सारे फ्रेंड्स हैं आपस में. और रेडियो कहते सुनते हैं, जो कि हमारा पेरेनियल रेडियो मेंटोर है और प्रमोट करता है हमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता है लाइव एयर पे आने के लिए. प्लीज हमें सपोर्ट करें, हम सब हमारे सबके काम को सपोर्ट करें. और हाँ, बाय द वे, हाल फिलहाल में 2 शॉर्ट फिल्में आई हैं. एक निखिल जोशी जी ने बनाई है, आइडेंटिटी करके अच्छी फिल्म मैंने देखी, उसे प्लीज आप लोग देखें. और ऑल्सो सनी भाई संजीव मेहरा जी ने बनाई है अभी एक मोर्चा करके, बड़ी खूबसूरत शॉर्ट फिल्म, मुझे बड़ी अच्छी लगी. आप उसे जरूर देखें. फार्मर्स अनरेस्ट पर है. आपका जैसा भी ओपिनियन हो आप देखें, और प्लीज सपोर्ट करें एंड स्टे सेफ. बॉयज, जस्ट बिफोर वी कंक्लूड द वीडियो, 2 lines फ्रॉम कमल, 2 lines फ्रॉम मुनीश. Manish, you go first. अरे आपकी बारी है. So guys, just stay tuned for the next project that Pankaj is gonna come up, and the one which already there in the market. Please watch it and support it. Yep. Thank you. Pankaj, are you making a new film with me? Yes, Kamal. Affirmation. You have to pick a topic and tell me. मैं स्टोरियां लिख दूंगा उसके पीछे. Okay, let's So yeah, that night part 2 discussion on that night part 2 हमारी कमेंट्स होने वाली है आफ्टर लॉकडाउन. या मैं पूछने वाला था कब कर रहे हैं वो. हाँ, लॉकडाउन के बाद करेंगे हम उसे. और उसके बाद जैसा कि मैंने मुनीश को प्रॉमिस कर दिया, बेंच वाली शॉर्ट फिल्म वो होगी. और उसके बाद 3rd कमल के साथ होगी. कमल, आपके पास एटलीस्ट 3 हफ्ते और है. आप मुझे you come to me with a topic that you would want me to do. Otherwise, I will choose and I'll cast you accordingly. No, I can right now tell you. If you can make a let's make a. Okay, I don't know whether you have to work on that, but let's make a father-son story. Because we have very few movies which are based on father and son relationship, and whatever there are little parts in that, and they are also either they are fighting with each other, they are not a very good father-son stories. So I think you can come up with a nice story with that.
ठीक है, मैंने ऑलरेडी फादर सन की एक स्टोरी लिखी है. Let's do So me and my son are working in that. ठीक है, accepted. It's a challenge बोलो या project बोलो, accepted. Whatever. Yeah. Yeah. So, okay, guys, accepted. So Munish की bench accepted है, and father and son, Vihan, right? Vihan is the name. Rian. Rian. Yeah. Vihan. Done. Done. ठीक है. All right, boys. Thank you for being part of this roundtable. Thank you, audience. Yeah, बोला है कुछ बोलो. Many Yeah, thank thanks and you. thank you to you. Yeah. So thank you viewers, thank you friends, thank you family, thank you everyone who is watching this video now, and please go hit that like and subscribe button on YouTube. Take care. See you Bye. guys. Take care, guys. Bye. See you.